अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंगारेनी कॉलेज के सबदोश मुलाजमीन को मुतबादिल मुलाजिमत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में दिया तयख़ून। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद पाशा कादरी और मोहम्मद मौज़म खान ऐवान ने उठाए मसाइल, हुकूमत से तवज्जो मबजूल करने की अपील। टीवी एक्ट्रेस की खुदकुशी के जिम्मेदार 2 अफराद को एसआर नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुबली हिल्स कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। DCP वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वक़फ़े सवालात में TRS अराकीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इस बात का तयख़ून दिया कि तेलंगाना के सिंगारेनी कॉलेज के वजीफ़याब मुलाजमीन को मुतबादिल मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी और फ़ौरी तौर पर वजीफ़े की रकम भी अदा करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इनकम टैक्स की कटौती की जाती है उस सिलसिले में वो मरकज़ी हुकूमत से मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की कटौती ना की जाए, जबकि मुस्तक़बिल में भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। నేను ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పిన వీళ్ళు చీకటి సూర్యులు బార్డర్లో పనిచేసే మిలిటరీ ఎట్టనో వీళ్ళు కూడా అట్లనే దినదిన గండం నూరేళ్ళ ఆయుష్లాగా ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లో పనిచేసే వాళ్ళకు. ఈవెన్ ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్లో కూడా ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళ గురించి రద్దు చేయమని చెప్తే మీకు సింగరేణికి చేస్తే మేము మొత్తం కోల్ ఇండియాకి చేయాలి అనే మాటలే చెప్తున్నారు తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ ఉన్నప్పుడు అదే పద్ధతి అధ్యక్ష, వీళ్ళు కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా అదే పద్ధతిలో చెప్తున్నారు. ఇది మన చేతిలో లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది, మీకు తెలుసు సభ్యుల గౌరవ సభ్యులకు. కానీ వీ కంటిన్యూ టు ఫైట్, పోరాటం మాత్రం కొనసాగిస్తాం తప్పకుండా. నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ మన పార్లమెంట్ సభ్యులకు చెప్పి పార్లమెంట్లో కూడా దీని మీద వీలైనంత వరకు ఫైట్ చేస్తాం అధ్యక్ష. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ విషయంలో చెప్పినారు కాబట్టి నేను ఇంటర్ఫియర్ అయినాను. వారు రైజ్ చేసిన చాలా చక్కటి ప్రశ్న అధ్యక్ష, మంచి ప్రశ్న. అందరు సభ్యులు కూడా చెప్పినారు, వెంకటరామరెడ్డి గారు కూడా చెప్పినారు. ఏ ఉద్యోగం అయినా మేము ఒక పాలసీ తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈ మధ్యలో మొన్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క HOD CCLA విషయంలో వస్తే నేనే స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను గత 2-3 సంవత్సరాలుగా చెప్తూ వస్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా రివ్యూ చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఒక పాలసీగానే తీసుకుందామని ఆలోచనతో ఉన్నాం అధ్యక్ష. 35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు ప్రజలకు సేవ చేసి రిటైర్ అయిన అధికారి, నాకే ఒక ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉంది అధ్యక్ష. ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు మన ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో పనిచేసేవారు. అప్పుడు మన పాండురంగం గారు అని చెప్పి సికింద్రాబాద్ ఆయన ఒక అతను మెంబర్ ఉండేవాడు అధ్యక్ష. మమ్మల్ని బాగా ప్రేమించేది, మేము కూడా పనులకు ఆయన దగ్గర పోయేది. ఒకరోజు నేను అనుకోకుండా పాండురంగం గారి దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఆ CE గారు అటెండర్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు అధ్యక్ష. నమస్కారం సార్, నమస్కారం, మీరేం సార్ మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే, నేను రిటైర్ అయినా, నేను ఇప్పుడు లేను సార్ ఉద్యోగంలో. ఎప్పుడు రిటైర్ అయినా సార్ అంటే 5 months సార్. సరే అయితే అయింది, మరి మీరు ఈ అటెండర్ టేబుల్ మీద ఎందుకు కూర్చున్నారు? నాకు ఆఫీస్ లేదు కదా, నా అకౌంట్ సెటిల్మెంట్కి వచ్చిన అందుకే కూర్చున్నాను. నాకు కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చినంత పని అయింది అధ్యక్ష. ఆ CE గారు నేను ఒక 20 సార్లు వచ్చాను యాజ్ ఎమ్మెల్యేగా. వారి అంత ఉన్నత ఉద్యోగి చీఫ్ ఇంజనీర్ రిటైర్ అయితే ఇదేం పద్ధతి అని నాకు బాధ కలిగి మీరు రండి అని చెప్పి వారిని నా ఎంబడి తీసుకెళ్ళి నేను పోయిన పని పక్కకు పెట్టి పాండురంగం గారితో నేను ఫైట్ చేసి. वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने असम्बली में TRS अराकीन रेखा नायक, पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर अराकीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत में चलाई जाने वाली KCR किट स्कीम मुल्क भर में मिसाली है। इस स्कीम के आगाज़ के बाद से ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात में 50% कमी आई है। उन्होंने बताया कि गांधी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा हामिला ख़वातीन की ज़चगी करते हुए माँ और नवमौलूद दोनों की जानों को बचाया गया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अराकीन को तयख़ून दिया कि जिन दवाखानों में तिबी अमला और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो ज़रूर फराहम की जाएंगी। ఈ డెలివరీ కంటే ముందు టెస్టులు చేస్తున్నా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా చేస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఇప్పటికే చూస్తున్నారు, గాంధీ హాస్పిటల్లో వారు వస్తే ఎంతో గొప్పగా డెలివరీస్ అయ్యి పిల్ల తల్లి ఆరోగ్యంగా వెళ్తున్నారో అదంతా కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. వారి దగ్గర కూడా
వారి నియోజకవర్గంలో కూడా కొన్ని హాస్పిటల్స్ అప్గ్రేడ్ చేయాలనేటువంటి ప్రతిపాదన చేస్తున్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు సునీత గారు 3వ కాన్పు కోసం అభ్యంతరం పెడుతున్నారని చెప్పిన అధ్యక్ష. పెడుతున్న మాట వాస్తవమే అధ్యక్ష. యాక్చువల్గా మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఒక్కరికంటే ఇద్దరికంటే పెద్ద ఎక్కువ లేరు. ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ ఎక్కడైతే గిరిజన ప్రాంతాలు ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం మనం అలౌ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అంటే డెలివరీ కోసం అయితే ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఈ కిట్లు ఇచ్చే విషయంలో డీబీటీ ఇచ్చే విషయంలో కొంత ఉన్నట్టుంది. దాన్ని తప్పకుండా మరోసారి పరిశీలన చేసే ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒక డెలివరీ కోసం అరటపడే స్త్రీ ఏ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసుకోవాలని చెప్తుండ్రో నాకు తెలిసి ఎక్కడైనా బేసికల్గా మన ఆశా వర్కర్ అసలు ఆ స్త్రీని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసి ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఆమె స్థితిని బట్టి ఏ హాస్పిటల్కి పంపాలి, ఎక్కడ డెలివరీ చేయించాలనేది ఆల్రెడీ ట్రాక్ చేస్తారు. 99.9% ఉంటుంది. ఎక్కడన్నా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ ఊరికి పోయిన కాడ టక్కన అక్కడ డెలివరీ కోసం ఉన్నప్పుడు కానీ ఇతరత్ర టూర్కి పోయినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ హాస్పిటల్లో కూడా అట్లాంటి రిజెక్షన్ లేకుండా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటా అని చెప్పి మనం చేస్తుంది అధ్యక్ష. मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज का कोरोना टेस्ट करवाने पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिस पर डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया कि वो होम क्वारंटाइन हो जाए। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उनसे मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपना टेस्ट करवाएं और उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस के होमगार्ड से लेकर इंस्पेक्टर को भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 30% खुसूसी अलाउंस देने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जिन पुलिस स्टेशन का 80% काम मुकम्मल हो चुका है, वहाँ माबाकी भी काम जल्द पाए तकमील कर लिया जाएगा। क़ाबिल अज़ीम मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद, फलकनुमा, शालीबंडा, आसिफ नगर, कुलसुमपुरा और नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तामीरी काम जल्द पाए तकमील करने का मुतालबा किया था। बलाला साहब। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे वक्त दिया और इस मौके के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब का इस कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन मेंटेनेंस के और इस सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि सईदाबाद, फलकनुमा, संतोष नगर, शालीबंडा, चंद्रायन गुट्टा, वुमेन पुलिस स्टेशन, ओल्ड सिटी, नामपल्ली, आसिफ नगर, कुलसुमपुरा, ये तमाम जगह नए पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 80% काम हो गया, सिर्फ 20% काम की वजह से ये पुलिस स्टेशन रुके हुए हैं। मैं आपके ज़रिए उनसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत से बोलकर, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलकर फंड रिलीज कराकर इमीडिएटली ये काम कराएं। सईदाबाद पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रेसिडेंशियल एरिया कम्युनिटी हॉल के अंदर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करें, पूरे एरिया के लोगों को उससे तकलीफ हो रही। तो मैं इसका फ़ायदा उठाते आपके ज़रिए हुकूमत से, होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि सिर्फ 20% काम बाकी है। स्पीकर साहब, वो जल्द से जल्द फंड रिलीज कर वो पुलिस स्टेशनों का काम मुकम्मल कराएं ताकि हम जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन रख सकें। मिनिस्टर अध्यक्ष बलाला साहब ने जो कहा है अध्यक्ष, हमारे आने सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी पुलिस स्टेशनों को जो है मॉडर्नाइज किया अध्यक्ष, और हैदराबाद में भी नए पुलिस स्टेशन भी बन रहे हैं अध्यक्ष। ये जो सईदाबाद, चांदमियार, याकुतपुरा और दीगर पुलिस स्टेशन में 70-80% आप जैसा काम बोले हैं हो गया है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो रहा है अध्यक्ष, और बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा अध्यक्ष। वज़ीर बल्दी मोहम्मद के.टी. रामाराव ने मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर प्रॉपर्टी टैक्स 1 सेटलमेंट स्कीम में 45 दिन तोसी देने का ऐलान किया। क़ाबिल अज़ीम मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन बिल की तायीद करते हुए इस बात का मुतालबा किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में 90% सूद की रकम मुआफ़ करने के सिलसिले में 1 सेटलमेंट स्कीम जो शुरू की गई है उसमें 45 दिन की तोसी की जाए, और आबरसानी बिलों की अदायगी में जो 1 सेटलमेंट स्कीम है जिसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर है, उसमें 2 माह की तोसी के भी इक़दाम किए जाएँ। बिल का और हमारे मिनिस्टर साहब का इस्तेफादा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के अंदर अभी आपने जो ये टैक्स से 90% इंटरेस्ट रिडक्शन की स्कीम लेकर आई है,
कई लोग उसके अंदर भरना चाह रहे हैं और कई लोग भर रहे हैं इसके अंदर। इससे काफ़ी फायदा हो रहा है आपको। ये जो लोगों को जो माशी तकलीफ से गुजर रहे थे, भरना चाह रहे हैं, लेकिन अब फिर जो है सो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि 1-2 महीने का टाइम इसके अंदर और तौसी करे तो आपकी तरफ से बड़ी मेहरबानी होगी। लोग भरना चाह रहे हैं लेकिन माशी तंगी की वजह से नहीं भर सक रहे हैं। आपसे मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर ये वाटर के बिल्स के अंदर और GHMC टैक्स के अंदर आप 90% इंटरेस्ट रिडक्शन के साथ जो ले रहे हैं, जिसकी कल आखिरी तारीख है, मैं गुजारिश करूँगा कि उसके अंदर 1-2 महीने की और तौसी की जाए। शुक्रिया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाना ने सेल्फ सर्टिफिकेट कानून के तहत दी जा रही तामीराती मंजूरियों के तनाजुर में फौरी जायदादों को राहत देने की दरख्वास्त की थी। इसके अलावा रुकन असम्बली ने कहा था कि इस कानून के तहत नोटरी जायदादों को राहत दी जानी चाहिए ताकि इसमें गरीबों का फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो क़वायद थे उसे 75 गज किया गया है। रुकन असम्बली ने कहा कि इसे 75 मीटर किया जाए तो बेहतर होगा। स्पीकर साहब, म्यूनसिपल एडमिशन मिनिस्टर साहब जो बिल पेश करे हैं, इसके अंदर ये परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन परमिशन के लिए, ये आवाम को जो परमिशन के लिए जो तकलीफ़ हो रही है, जो ऑफिसों के चक्रा कर रहे हैं, उससे तमाम को इससे सहूलत मिलेगी, आसानी होगी। और सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर उसको ख़ुद ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी वो पेश कर रहा है वो सही है। अगर से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो विदाउट नोटिस आप उसको डिसमेंडल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसके अंदर साथ ही साथ चाहे डॉक्यूमेंट कोई भी हो, अगर से किसी के पास पुराने लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो सेटिस्फाइड है और वो एफिडेविट के जरिए आपको ऑनलाइन में ये बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी क्लियर है, इवन विद द नोटरी डॉक्यूमेंट, अगर वो नोटरी को कोई बाद में चैलेंज करता है तो वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया, यू कैन टेक एक्शन। अगर नोटरी उसका जीनियन है और उसको गरीब आदमी है, रेजिडेंशियल के लिए अगर से वो अप्लाई करता है तो उसको भी आप कंसिडर करने का उसके अंदर प्रोविजन रखिए, ताकि या वन टाइम, जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्लान बनाएंगे उसके जरिए, ताकि ये परमिशनों के अंदर इन लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले जो है ना, ये ओनली इंटीमेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 100 गज तक था, 75 गज करें आप उसको, कम से कम 25 मीटर में उसको भी मीटर में कर दो आप, 75 मीटर तक कर दो आप उसको, सेल्फ से उसको जो सिर्फ विदाउट परमिशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराकर आपको जो कराना है उसको आप कम से कम 75 मीटर्स करिए, तो 25 मीटर्स में है तो वो भी मीटर में हो जाएगी। అధ్యక్ష, గౌరవనీయులు బలాలా గారు మాట్లాడుతూ 2 విషయాలు అడిగారు అధ్యక్ష. ఒకటి, నోటరీ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారికి కూడా రిలీఫ్ ఇవ్వండి అని అడిగారు. మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెవెన్యూ బిల్లు పాస్ చేసే క్రమంలో, రెవెన్యూ చట్టాన్ని మనం పాస్ చేసే క్రమంలో వారు ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష, ఒక వన్ టైం రిలీఫ్ ఇచ్చే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. ఆ రిలీఫ్ ఇచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వారు లేవనెత్తిన సమస్యకు కూడా పరిష్కారం లభిస్తుందన్న విషయాన్ని నేను వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దాంతోపాటు అధ్యక్ష, వారు GHMCలో అదే రకంగా ఇతర మున్సిపాలిటీలో మనం తీసుకొని వచ్చిన ఒక వెసులుబాటు గురించి చెప్పారు. వన్ టైం సెటిల్మెంట్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కానీ వాటర్ బిల్స్ కానీ ఏదైతే తెచ్చామో దాని సమయాన్ని పొడిగించమని కోరారు. వారి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఇంకా మా సభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు కూడా అధ్యక్ష, తప్పకుండా మరొక 45 రోజుల పాటు తప్పకుండా దీన్ని పొడిగిస్తూ అక్టోబర్ 31 వరకు రిలీఫ్ ఇవ్వబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को कोरोना से सेहतियाब होकर असम्बली इजलास में आने पर अपनी जानिब से और अराकीन की जानिब से मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। स्पीकर असम्बली ने रियासती वज़रा अराकीन असम्बली से ख्वाहिश की कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने वक्फ़े सिफ़र के तहत बात करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ज़ईफ़ुल उम्र और माज़ूरीन के वज़ाइफ फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि कई एक मंडल्स में बेकायदगियों की जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इसे दूर करने के इक़दाम किए जाएँ और नई दरख्वास्तों की यकसोई करते हुए फौरी वज़ाइफ जारी किए जाएँ। जनाब पाशा कादरी साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये हुकूमत की तरफ से जो वीडियो पेंशन, ओल्ड एज के, हैंडीकैप के पेंशन जारी किए जाते हैं, बहुत सारे मंडलों पे उसमें बेकायदगी है और कुछ रुके हुए हैं। मेरी गुजारिश है
कि लॉकडाउन के बाद से आवाम बहुत परेशान है माशी तौर पर। उनके लिए ज़रूरी है कि जितने वीडियो पेंशन है और ओल्ड एज पे पेंशन माजूरों के, इनको फौरी जारी करने के लिए अहकाम दिए जाएँ। लोग काफ़ी इसके मुंतज़र है और कुछ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा भी है, उसकी तहक़ीक़ात करके नए वीडियो के लिए भी जारी करने के अहकाम दिए तो गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अब तक कुछ मंडल में तकसीम हुए, कुछ मंडल से अभी बाकी है और माजूर लोगों के भी जो वजीफ़े हैं उसमें भी ताख़ीर हो रही है। जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गरीबों को इसका फ़ायदा होगा और गरीब लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। शुक्रिया। రేగా కాంతారావు గారు, మినిస్టర్ గారు। मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी जो कहे अध्यक्ष नोट किया गया, बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। पाशा कादरी साहब। जनाब स्पीकर साहब, हेल्थ सेक्टर में ये जो हद उम्र मुलाजिमीन की में इजाफ़ा किया गया है, इमाम पार्टी की तरफ से हम तायद करते हैं। साथ ही साथ आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इंतखाबी मंशूर में तमाम मुलाजिमीन के लिए हद उम्र में इजाफे के लिए वादा किया गया था और उन तमाम के लिए अगर इसमें इजाफा किया जाए तो बेहतर होगा। ये सच है कि अब फिलवक्त आप सेहत के मैदान में जो मुलाजिमीन हैं उनके हद उम्र में इजाफा किए हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ ये भी याद दिलाते हैं कि आपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था आवाम से कि तमाम मुलाजिमीन की भी उम्र में इजाफा, सर्विस की उम्र में इजाफा होगा। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं और इसकी तायद करते हैं। शुक्रिया। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने आज ऐवान असम्बली में अपनी पार्टी की तरफ से खानगी यूनिवर्सिटीज़ बिल की तायीद करते हुए वज़ीर तालीम से सवाल किया कि क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए हुकूमत के जो क़वायद हैं, क्या इस पर अमल किया जाएगा। जनाब मौज़म खान साहब। स्पीकर सर, जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो आज जो बिल पेश की गई थी 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस बिल की हम तायीद करते हैं। और कुछ सवालात है स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स की तहत ये 5 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट परमिशन के लिए डाले हैं, चल रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के अंदर जो रिज़र्वेशन होता है SC, ST और BC के तहत, क्या उसी तरीक़े से स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाएगा? जैसा लेक्चरर्स है, लेक्चरर्स के अंदर जो कैटेगरीज रहते हैं, लेक्चरर्स को किस तरीक़े से अपॉइंटेड करना चाहिए? SC कैटेगरी में होना चाहिए, BC कैटेगरी में होना चाहिए, ST कैटेगरी में होना चाहिए? क्या उसी तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप परमिशन दे रहे हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नॉर्म्स के तहत ही? ये सवालात मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू। मिनिस्टर गारू। అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు మోజం ఖాన్ గారు, శ్రీ రాజేందర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ శ్రీధర్ బాబు గారు, సంజయ్ గారు, శ్రీ వెంకటవీరయ్య గారు వారు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు. అధ్యక్ష, వారి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు, వారికి ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, ఏ సమాజంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా విద్య అభివృద్ధి ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి. అధ్యక్ష, దేశంలో ఉన్నత విద్యారంగమే విద్యార్థులకు ఉత్పాదక మానవ వనరులకు అభివృద్ధి చేసి ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించడానికి తోడ్పడుతుంది. అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ప్రాథమిక విద్యలో 100% స్థూల జాతీయ నమోదు ఉన్నప్పటికీ మాధ్యమిక ఉన్నత విద్యలో ఈ నిష్పత్తి కొంత క్షీణించింది. అధ్యక్ష, ఉన్నత విద్య అవకాశాలను కోరుకునే విద్యార్థుల సంఖ్య రోజుకు గణనీయంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. అధ్యక్ష, భారతదేశంలో చాలా వరకు ఉన్నత విద్యారంగంలో ప్రభుత్వ ఆధీనంలో కొనసాగింది. అధ్యక్ష, కానీ మారుతున్న పరిస్థితులలో విద్యార్థుల నుండి వస్తున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఉన్నత విద్యలో భారీ విస్తరణకు ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటు అవసరాన్ని భారత ప్రభుత్వం గమనించింది. అధ్యక్ష, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ 1953లో ఏర్పాటు చేయబడింది. అధ్యక్ష, ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం భారతదేశంలో స్థాపించబడిన
మరియు నెలకొల్పబో అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుమతులు మంజూరు చేయడం మరి పర్యవేక్షించడం కూడా వారి బాధ్యత అధ్యక్ష విద్యా వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న సవాళ్లను మరియు పోటీతత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలను కూడా ఏర్పాటుకు వెసులుబాటు కల్పించింది అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆగస్టు 8, 2020 నాటికి మన భారతదేశంలో 950 యూనివర్సిటీస్ ఉంటే అధ్యక్ష, అందులో 53 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, 412 రాష్ట్ర యూనివర్సిటీలు, 124 డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అధ్యక్ష, 361 ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మన విద్యా విధానాన్ని పటిష్టం చేయడానికి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఒకవైపు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, మరోవైపు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంకోవైపు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అనేక నిర్ణయాలు తీసుకొని పేద విద్యార్థులకి ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తున్న విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. దీంట్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అధ్యక్ష, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థుల కోసం అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు కేజీ టు పీజీ వరకు పేద విద్యార్థులకు విద్య అందించాలనే సంకల్పంలో భాగంగా దాదాపుగా 959 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసిందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అధ్యక్ష. ఈ గురుకులాలలో చేరడానికి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుండి కూడా అక్కడ నుండి మన గురుకులాల్లో చేరడానికి ఏ విధంగా పోటీ పడుతుందనేది గౌరవ శాసనసభ్యులం అందరం కూడా మనము రోజు నిత్యం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన దాదాపుగా 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है. पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1417 नए केसेस दर्ज हुए हैं. जुमला केसेस की तादाद 1,58,513 तक पहुंच गई. आज सुबह 13 अमवात की तस्दीक की गई. जुमला अमवात 974 हो गई. डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,27,007 बताई गई है. आज सुबह 2,479 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई. एक्टिव केसेस 30,532 बताए गए हैं. हैदराबाद में 264 नए केसेस सामने आए. कोल्हन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने मॉडल टाउन कॉलोनी और फिरंगी गोड़ा में इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और आबरसानी और सीवरेज लाइन के मसाइल का जायज़ा लिया. उनके हमरा साबिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर असद बेग के अलावा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारान भी मौजूद थे. डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि नई पाइपलाइन की तनसीब और सीवरेज लाइन बिछाने के सिलसिले में तयख़ुन भी दिया गया है. इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे. मैं कादर मुद्दीन वाटर जनरल मैनेजर हमारे जहनुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा साहब के साथ और यहाँ के मकामी एमआईएम के मोतमीन और दूसरे हमारे साबिक़ा कारपोरेटर साहब के साथ दौरा करें. यहाँ पर मॉडल टाउन कॉलोनी में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है और जो इससे पहले लाइन डाले थे उसके जंक्शंस नहीं थे वो और थोड़े ड्रेनेज के प्रॉब्लम थे. कारपोरेटर साहब के साथ पूरा दौरा करें. इंशाल्लाह कल से छोटे मोटे काम स्टार्ट हो जाएंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो जिसकी वजह से ड्रेनेज बैक स्लो चल रहा और लोगों को पानी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है. इंशाल्लाह वो 2-3 दिन में हल कर देंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केशोगिरी ब्रांच की इंतजामिया पर अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ बदतमीजी के साथ पेश आने का इल्ज़ाम आयद किया गया है. अकाउंट होल्डर्स के मुताबिक वज़ाइफ पैराना साली हासिल करने वाले ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन के साथ भी बैंक इंतजामिया का नारवा सलूक जारी है. इस सिलसिले में आला अहदेदारों से अपील की गई है कि मज़कूरा ब्रांच इंतजामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें.
आगे यहाँ 2 घंटे से हम 2-3 घंटे और आल लोगों को बोले करे बात नहीं करा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे लोग आड़े टेढ़े बातें करके क्या कर रहे हैं बाहर खड़ा कर दिए 2-3 घंटे से हो रहा अब इनकी एज है 70-75 के है। अब ये हालात है इनकी, ऐसा रहे तो कैसा रहेगा बोलो आप लोगों का। बोले तो चिड़िया हो गए गाली गुलों दे के भिजा दे रहे लोग। थोड़ा मेरे से रिक्वेस्ट है आप लोग आगे वो और 2-3 लेडीज़ है, बड़े बड़े लोग आए, लेडीज़ है, जेंट्स है, लोग समझ रहे नहीं कर रहे हैं तो क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। चंगागुट्टे में वाक़ सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हिंदी दिवस का अहतमाम किया गया, जिसमें सीआरपीएफ डीआईजी पी पॉली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सेकंड इन कमांड एनके सिंह, कमांडेंट धर्म प्रकाश ने भी इस तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी के हाथों हिंदी ज़बान में मुनक़्क़िद किए गए तहरीरी मुकाबलों के इनाम याफ्तगान में तौसीफ़नामे तक़सीम किए गए। जुबली हिल्स पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और 11 सितंबर को हुए कत्ल की वारदात के मुकदमे को हल किया। रहमतनगर के साकिन 26 साला मोहम्मद सिराज का कत्ल हुआ था और इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए 39 साला शामिर बेग मुतवत्तिन ज़िले कृष्णा को हिरासत में लिया। कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। రమేష్ అదేవిధంగా ఎస్ఐ హరీష్ రెడ్డి ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత ఫాస్ట్గా ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేసినందుకు వీళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నాను. వీళ్ళందరికీ కూడా రివార్డ్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇది చేసి కొన్ని అలిగేషన్స్, కౌంటర్ అలిగేషన్స్, దాంట్లో సంబంధించిన 2-3 వ్యక్తులు ఎవరైతే దానికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా విచారించడం జరిగింది. ఈరోజు टीवी एक्ट्रेस के श्रावणी की खुदकुशी के जिम्मेदार 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए एसआर नगर पुलिस ने खुदकुशी केस को हल किया। 24 साला अंबाटी दिवा राजा रेड्डी और 28 साला एम साई कृष्णा रेड्डी को हिरासत में लिया गया। इस केस के सिलसिले में डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को तफसीलात बताई और खुदकुशी की वजूहात पर तफसीली रोशनी भी डाली। इस महीने 8 तारीख को करीब 8 बजे मधुरा नगर एसआर नगर लिमिट्स में एक टीवी आर्टिस्ट श्रावणी आत्महत्या करके अपनी जान ली। उसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद आज 2 लोगों को, देवराज रेड्डी और साई कृष्णा रेड्डी, 2 लोगों को अरेस्ट करे एसआर नगर पुलिस। इसमें 2012 में काकीनाडा से श्रावणी इधर टीवी आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पे हैदराबाद आई। उसके बाद में 2015 में साई कृष्णा रेड्डी के अकादमी से उसका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में 3 साल तक करीब वो लोग अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे। करीब 2017 में अशोक रेड्डी एक प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, प्रेमा तो कार्तिक के मूवी में श्रावणी को एक छोटा रोल अपने फिल्म में दिया हो। उसके बाद में उसके साथ भी उसके रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। अभी 2019 में देवराज रेड्डी एक टिकटॉक आर्टिस्ट है। वो टिकटॉक के ज़रिए से ये श्रावणी, ये जो टीवी आर्टिस्ट है, उसका परिचय हुआ। ये तीनों लोग अपने रिलेशनशिप अलग अलग से मेंटेन करते थे। 1 साल के बाद करीब ये देवराज रेड्डी को मालूम हुआ कि इसके श्रावणी को इन दोनों के साथ भी पहले से रिलेशनशिप है करके। इन बीच में झगड़ा हुआ और साई कृष्णा रेड्डी जो है वो देवराज रेड्डी से दूर रहने के लिए वो भी वार्निंग दिया। तो इस बीच में साई कृष्णा रेड्डी, अशोक रेड्डी श्रावणी के पेरेंट्स के साथ देवराज रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दिए। कई जगह उसके रिलेटिव्स भी उसको मारने लगे। उसके बाद में एक एफआईआर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ। ये पूरा प्रेशर में तीनों लोगों के बीच में और पेरेंट्स के प्रेशर में आके श्रावणी कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। उसके मतलब जो पहले एक डेथ से पहले, तो सुसाइड से पहले जो उसका टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुआ देवराज रेड्डी से, उसमें ये साई कृष्णा रेड्डी
और अशोक रेड्डी वो पेरेंट्स के साथ पूरे मिलके उसको हरास करे और उसको धमकी दिए करके उसका एलिगेशन था। उसके बाद में चंद मिनट के बाद श्रावणी अपने घर में मधुरा नगर में हैंगिंग करके सुइसाइड कर ली। तो आज उसी सिलसिले में ये 2 अक्यूज़ जो है साई कृष्णा रेड्डी और देवराज रेड्डी को आज अरेस्ट करें। इसमें जो A2 है अशोक रेड्डी उसको भी अरेस्ट करना है। रॉयल कॉलोनी बालापुर में सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए जाने की शिकायत के बाद मुतालिका इलाके के कौंसलर अहमद कसादी ने मज़कूरा इलाके का मुआयना किया और बताया कि इस सिलसिले में एक रिपोर्ट म्यूनसिपल चेयरमैन और म्यूनसिपलिटी के आला ओहदेदारों को पेश की जाएगी, जिसके बाद वो इस सिलसिले में कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे रॉयल कॉलोनी बालापुर में आया हूँ। जो हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन यहाँ पे सारी मीडिया पे तकरीबन मीडिया पे यहाँ पे कुछ रोड का मसला था। हमारे दाऊद कुरैशी बोल के है यहाँ पे जो उनकी बाउंड्री है कुछ आगे बढ़ गए, रोड छोटी कर दिए, 15 फीट की कर दिए बोल के इसके मीडिया सारी मीडिया में चला, आप लोग देखे होंगे। उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला सादी साहब और इंचार्ज अहमद सादी साहब, हमारे कमिश्नर प्रवीण कुमार साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मैं यहाँ पे आया हूँ और देखा हूँ। देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोड छोटी हो गई, क्योंकि 100 आदमी यहाँ पे जमा है, लोगों का ऑब्जेक्शन है यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाते करते बोल के। और मैं वेरीफाई के लिए आया हूँ, हमारे दाऊद कुरैशी साहब को भी बुलाया हूँ और जो आजू बाजू के जो लोग हैं जो उनके डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ मैं, उसके लिए आया हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट लेके म्यूनसिपल में जमा कराऊँगा, उसके बाद जो भी है म्यूनसिपल उसके लिए स्टेप लेंगी, चाहे वो लीगल हो इलीगल है फ़ौरन वो तोड़ने का हुक्म देती है और तोड़ देंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं लीगल है तो इंशाल्लाह कायम रहेगा वो, हम इसका वादा कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों पब्लिक है, 100 पब्लिक जमा है जिसका ऑब्जेक्शन है पब्लिक को कि रोड हमारे छोटी हो गई, रोड पे कब्जा करे बोल के। उसके लिए मैं एरिया काउंसलर अहमद वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दहली फसादात के सिलसिले में बाएं बाजू के लीडर सीताराम येचुरी का नाम चार्जशीट में लिए जाने पर आज हैदराबाद में बाएं बाजू की जमातों की तरफ से एहतजाज किया गया। CPI लीडर नारायणा के अलावा दीगर कायदीन भी इस एहतजाज में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। Trying to file a false case against Sitaram Yechuri and others of 8 intellectuals. This one kind of attack and ideological war. So BJP and RSS based the government of Amit Shah, they are trying to curb the different voice. This different voice they don't want. That too left voice. So this left voice should be curbed. रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है और बाज़ अजला आदिलाबाद, मंचिलियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, भोपालापल्ली, वरंगल, जनगांव, खम्मम, सूर्यापेट, नलगोंडा, रंगारेड्डी, मेडचल, हैदराबाद और नागर कर्नूल में बारिश की पेश क़यासी की गई है। इसके साथ साथ 15 सितंबर को भी बारिश शदीद होने का इम्कान बताया गया है। रियासत में इस बार मामूल से ज़्यादा अब तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तेलंगाना के बाद अजला दरख्तों और बरखी खंभों के गिरने की भी शिकायत मौसूल हुई है, जबकि तेलंगाना के बेशतर नदियों और तालाबों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है और बाज़ ज़खायर आब से पानी का इखराज भी जारी है। रियासती वज़ीर बल्दी नवमुनक्स KT रामाराव 2 अक्टूबर गांधी जयंती को यौम सफाई के तौर पर मनाएंगे। रियासती वज़ीर KTR ने महकमे के आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि महकमे बल्दी नवमुनक्स गांधी जयंती को इस साल यौम सफाई के तौर पर मनाएगी और इस सिलसिले के तहत खुसूसी मुहिम भी चलाई जाएगी। इस इजलास में मेयर GHMC बी राम मोहन, म्यूनसिपल चेयरमैन, कमिश्नर्स और एडिशनल कलेक्टर्स व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए मज़ीद 45 दिन की मोहलत देते हुए आखिरी तारीख में तौसी की जाएगी। MS ग्रुप की जानिब से तश्कील दिए गए एडवेंचर पार्क की जानिब से वक्तन फ़वक्तन कामयाब इंटरप्रेन्योर्स के लेक्चर्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं ताकि नए स्टार्ट ऐप से शुरू करने वाले मुस्तफ़िद हो सकें। इस सिलसिले के तहत KGN ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ अख्तर को मदऊ किया गया था ताकि वो अपने बिजनेस के कामयाब सफ़र के बारे में तफसीलात बता सकें।
आसिफ अख्तर ने इस मौके पर स्टार्ट अप्स के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बताया कि वो मेहनत, जस्तजू और लगन के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए तगो दू करें और कैरियर और बिजनेस के किसी भी मोड़ पर मायूस ना हो। उन्होंने बिजनेस में कामयाबी के कई गुर बताए। मोहम्मद मेराज ने खैर मकदम किया और आसिफ अख्तर से तबादले ख्याल किया, जबकि इस मौके पर मैनेजिंग पार्टनर पिस्ता हाउस मोहम्मद मोही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अपॉर्चुनिटी दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि फिर वो कल अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी नहीं पता। सो जब टाइम है यू हैव टू हिट द अपॉर्चुनिटी, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से यू। कैसा करो क्या करो, वो अपन जैसा करे तो परेशान हो जाएंगे। बोला ना बंक मारे अपन और कुछ चीज़ा करे तो वैसे तो वो सब कुछ भी मत करो। आई रियली So we are catering into all those things. It's not like we are only focusing on our corporates or we are focusing on a B2B customer or B2C customer. We are entertaining all the customers. Like wedding is one of the biggest market in a city like. So it's a complete customization, return gift concepts and all your requirements. Like basically we can also do the नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिंगारेनी कॉलेजेस के सबदोश मुलाजमीन को मुतबादिल मुलाजिमत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में दिया तयख़ून। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद पाशा कादरी और मोहम्मद मौज़म खान ऐवान ने उठाए मसाइल, हुकूमत से तवज्जो मबजूल करने की अपील। टीवी एक्ट्रेस की खुदकुशी के जिम्मेदार 2 अफराद को एसआर नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुबली हिल्स कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। DCP वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।